عمران خان کی وزارت عظمیٰ کے دور میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ 190 ملین پاؤنڈ جو سرکار کے پیسے تھے، پاکستانی عوام کے پیسے تھے، وہ نیشنل کرائم ایجنسی جو برٹن کی ہے اس نے پاکستانی حکومت کو بھجوائے، اور اس شخص نے ایک بند لفافے کی بغیر اس کے کانٹینٹ کو کیبنٹ کو بتائے اس کی اپروول ان سے لی، بلکہ وہاں پہ کچھ وزراء نے احتجاج بھی کیا اور کہا کہ جی لفافے کے اندر جو کچھ ہے، جو بھی ہے کاغذات ہیں، ان میں جو کچھ لکھا ہوا ہمیں بتایا جائے، لیکن نہ بتایا گیا۔ وہ پیسے جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ثاقب نثار صاحب نے بحریہ ٹاؤن کراچی کی جو ہے ایک انویسٹیگیشن کی تھی اور بڑی لمبی چوڑی ہیئرنگ چلی، اور اس میں یہ طے پایا کہ 600 ارب روپے سے زیادہ حکومت کو نقصان پہنچا ہے اس زمین کے ہیر پھیر میں، اور جو زمین کو بحریہ ٹاؤن کراچی کی جو زمین ہے اس کے سلسلے میں اس 600 ارب روپے کا ایک جرمانہ جو ہے اس کا ایک اکاؤنٹ کھول دیا گیا کہ اس میں قسطیں جو ہے ایک معینہ مدت کے اندر جو ہے جمع کرا کے یہ جرمانہ جو ہے پے آف کیا جائے گا، بجائے اس کے کہ وہ حکومت کے خزانے میں پیسہ جمع ہوتا۔ وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے نا وہ بحریہ ٹاؤن یا ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا گیا، ان کا جو جرمانہ تھا اس کو ریڈیوس کیا گیا۔ اس کے افزانے میں 400 ایکڑ یا کچھ جو بھی آپ میرا خیال ہے 400 ایکڑ کے قریب زمین جو ہے انہوں نے سہاوا کے قریب لی، اور وہاں پہ ایک القادر نامی یونیورسٹی وہاں پہ بنائی گئی۔ اس یونیورسٹی کے بورڈ پہ عمران خان صاحب خود ہیں، ساتھ ان کی بیگم ہے۔ وہاں پہ کتنی کلاسیں ہوتی ہیں، کتنی کلاسیں ڈگریاں دی جاتی ہیں، کیا وہاں پہ ایجوکیشن ملتی ہے، وہ یونیورسٹی ہے یا نہیں ہے، اس کا کیا کریکٹر ہے اس انسٹیٹیوشن کا، وہ میں میڈیا کو کہوں گا کہ خود جا کے وہاں پہ سہاوا میں جا کے انویسٹیگیٹو تھوڑا سا جرنلزم کریں اور جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی کتنے لوگ جو ہیں فارغ التحصیل ہوئے ہیں 4 سال کے اندر، کیا تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے، کتنے وہاں پہ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں۔ یہ سارے حقائق ہیں جن کے اوپر عدالت نے کل فیصلہ دینا ہے، یا امید کی جاتی ہے کہ فیصلہ آئے گا۔ آپ حساب لگائیں کہ ایک شخص نے ایک ایسے شخص کو ریلیف دی جس کے خلاف ایک الزام ثابت ہو چکا تھا، اور اس الزام ثابت ہونے کے نتیجے میں اس کا ایک لائبلٹی اکاؤنٹ بنایا گیا، جرمانے کا اکاؤنٹ بنایا گیا، جس میں 600 ارب روپے سے زیادہ لائبلٹی کریٹ کی گئی، اور اس کی ایڈجسٹمنٹ میں اس وقت بھی میرے علم کے مطابق ڈیفالٹ ہے، وہ اکاؤنٹ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا، اس میں پیمنٹ نہیں کی جا رہی۔ اس ملی بھگت میں حکومت کو جو نقصان پہنچایا گیا، جو ہماری انٹرنیشنل ریپوٹیشن خراب ہوئی کہ این سی اے کو جب پتہ لگا کہ یہ کسی ذاتی اکاؤنٹ میں لائبلٹی اکاؤنٹ یا جرمانے کے اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے، تو وزیر اعلیٰ نے کہ کولیگز نے، کیبنٹ کے کولیگز نے کہا کہ یہ ہمیں نہیں بتایا گیا کہ وہاں پہ 4-5 وزیروں نے کہا۔ تو امید کی جاتی ہے کہ ان تمام حقائق کی بنیاد پہ کل کوئی فیصلہ سنایا جائے گا جو ان فیکٹس پہ بیس کر رہا ہوگا، اور انصاف کے انشاءاللہ تعالی تمام تقاضے جو ہے پورے کیے جائیں گے۔ دوسری میں ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ امریکہ میں انہوں نے نئے ڈرامے شروع کیے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں،
हुकूमती सतह पे कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी स्टेज के ऊपर हुकूमत को इमरान खान के मुतल्लिक या किसी और के मुतल्लिक कुछ कहा गया हो कि उसको रिलीफ दी जाए। अब ये कांग्रेस की हेयरिंग का ड्रामा जो है, किसी किराए की जगह पे को कमरा लेके उसमें एक ड्रामा रचा रहे हैं कि ये कांग्रेस की हेयरिंग जो है पाकिस्तान के मामला पे शुरू हो चुकी है। ये 20 जनवरी के बाद जो है, जब ट्रंप साहब जो है वो हल्फ लेंगे, तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं बल्कि जिस मुल्क में ये कार्रवाई कर रहे हैं उनको भी बदनाम कर रहे हैं कि कांग्रेशनल हेयरिंग्स का एक जाली किस्म का जो है ड्रामा बना के कि ये हेयरिंग्स हो रही हैं, उसमें ये पीटीआई वाले जो है वो एक बता रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को जी कि अमेरिका जो है देखें पाकिस्तान के हालात के ऊपर कितना गहरी नज़र रखे है और हमारी हमायत में पता नहीं क्या क्या जो है लंबे चौड़े फैसले करने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे तल्लुकात जो हैं रियासत के साथ जो है वो एक ऐसी बुनियाद पे हैं जिसकी तफसील जो है वो एक लंबी है, पिछले 75-76 साल की। और ये वही मुल्क है जिसके मुतल्लिक इन्होंने कहा था कि ये एब्सोल्युटली नॉट और गुलामी नामंजूर, अब एब्सोल्युटली यस हो चुका है और लेट गए हुए हैं उनके आगे, बाजमात लेटे हुए हैं उनके आगे। तीसरा मैं आपको बताना चाहता था ये कितने खुदगर्ज लोग हैं। आपने वो मोहतरमा लीमा खान साहबा की गुफ्तगू सुनी, उस गुफ्तगू से ज़ाहिर होता है कि उसके अजीज़ व कारब, उसकी लीडरशिप जो है पार्टी की, वो सारे चाहते हैं कि अंदर रहे, वकला भी चाहते हैं अंदर रहे। 70-80 करोड़ या 1 अरब रुपए के करीब जो है वकला को जो है अदा हो चुका है और मीटर अभी तक जो है वो चालू है। और वो ये भी उन्होंने कहा उस गुफ्तगू के अंदर वीडियो में कि जी उसको कोई एसी का क्यों आप जो है वो डिमांड कर रहे हैं। वो उसके एक्सपेंस पे या उनके हालात को, जिन हालात में भी वो हैं, वो अपने जो भी किया हुआ है उनकी वजह से उन पर मुकदमात चल रहे हैं, फैसले भी हो रहे हैं, कुछ हो जाएंगे, उनको भी इनकैश करने के चक्कर में है। हर शख्स जो उनका बाहर बैठा हुआ है, चाहे उनकी बेगम है, चाहे उनकी अहले खाना है, उनकी हमशीरगान है, उनकी लीडरशिप जो है पार्टी की, सारे के सारे जो है वो इस चक्कर में है कि हम किसी ना किसी तरह जो है इस पार्टी को की जो भी इस वक्त हालात हैं उनको किसी तरह सियासी तौर पे इनकैश करें। वो मैं आप मीडिया की वसातत से सब लोगों को कहूँगा कि वो उसकी डिनाइल नहीं आई, किसी ने तरदीद नहीं की कि ये वीडियो जाली है या बनी हुई है। वो वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पे मौजूद है और इसका सबसे बड़ा सबूत है कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब ने संगजानी पे इत्तफाक किया और गंडापुर को कहा कि आप ये जो हमलावर हो रहे हैं इस्लामाबाद पे, संगजानी पे रुक जाएं, वहाँ पे पड़ाव डाल दें, वहाँ पे धरना दें। लेकिन मोहतरमा बेगम साहिबा ने कहा कि जी हमने तो इस्लामाबाद जाना है, हमने डी चौक जाना है। और डी चौक पहुँच के फिर जो कुछ हुआ तो सबके सामने है। उन्होंने अब बहुत सी कहानियाँ बनाई हुई हैं, लेकिन उससे कहानी में सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो काबिल गौर है कि जिस तरह ये बड़के मारने वाले वहाँ से दौड़े और फिर इन्होंने ड्रामा रचाया कि 278 बंदे जो है वो उनकी हलाकत हुई है, कोई 150 कहता है। अभी सुना है कि 11-12 के ऊपर आके रुके हुए हैं, लेकिन सबूत आज भी उनका कोई FIR नहीं है, कोई सबूत नहीं है किसी किस्म का। कोई जो होता है ना कि एक प्रूफ जो है दिया जाए, जो भी वो गुफ्तगू उन्होंने जितनी भी गुफ्तगू पिछले 6-7 साल की सियासत में की है या उससे पहले 35 पंचर से लेके अब तक जितनी भी गुफ्तगू है, कभी किसी का सबूत नहीं दिया। लेकिन प्रोपेगेंडा मशीनरी जो है वो इस तरह ओवर टाइम काम कर रही होती है कि मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, दूसरे मुल्कों में जो है वो जो उनके लोग बैठे हुए हैं उनमें। अब लेटेस्ट देख लें, ये साल ख़त्म हुआ है, इसमें $4 अरब जो है पाकिस्तानियों ने
अपने घरों को ज़्यादा भेजा है। देखें ये कितनी नाअक्बत अंदेशी है कि आप अपने मुल्क में जो पैसा आ रहा है वो लोगों के घरों में पैसा आ रहा है, लोग अपने घरों के खर्चे के लिए पैसे भेज रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं रोक दें। ये किस तरह पॉसिबल है कि आप फॉरेन रेमिटेंस जो है आप अपने मुल्क को, अपनी कौम को, लोगों के घरों को, उनकी फैमिलीज़ को नुकसान पहुंचाना दे रहे हैं। लोगों ने इनकार कर दिया और अब रात एक साहब टीवी पे कह रहे थे नहीं अभी 2 महीने इंतज़ार करें। पहले पिछले साल का कहा था चलो 2 महीने और इंतज़ार कर लेने हैं, जड़ा सब कढ़ना है कढ़ लैन, फिर जड़ा 2 महीने दे विच। तो ये इनके तमाम तर 3 हमले, उससे पहले 9 मई, उसके पहले ये सारे के सारे अल्लाह के फजल से नाकाम हुए हैं और इनका एहतसाब जो है जारी रहेगा। अब ये कोई कहता है कि मुलाकात हुई है, ये हुआ है, फलान हुआ है, ये हुआ है, ये सारा के लोगों नूं जिहड़ा हैगा ना वरचान वास्ते इहो जिहियां गल्लां करते ने। गल कोई भी नहीं हैगी। गल आहिस्ता आहिस्ता सारे नूं पता लग जाएगी। कोई इसमें हकीकत कभी छुपी नहीं रह सकती। हकीकत इंशाअल्लाह ताला जल्द सारी हकीकतें सामने आने शुरू हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी।